Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. পবিত্ৰ ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰাম দিনটো দিছে যে তেওঁৰ ওচৰত আহি আমি ঈশ্বৰক সেৱা কৰিব প্ৰণিপাত কৰিব কাৰণে সুন্দৰ সময় আমাক দান কৰাৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰকো ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোককো ধন্যবাদ দিছোঁ এতিয়া অনলাইনৰ যোগেদি যিমান চবে ইয়াতে গ্ৰেছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত জড়িত আছে তেওঁলোককো আহক এটা বাক্য পঢ়ি পেলাই আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিম प्रभाव चैप्टर 8 वर्स 17 जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ और जो मुझको प्रयत्न से तरके उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं प्रभु यीशु बाइकों पर आशीर्वाद थको प्रार्थना करो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. পবিত্ৰ 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 সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ যহোৱা আপোনাক ধন্যবাদ 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 দিছোঁ কোটি কোটিবাৰ আপোনাৰ চৰণত পৰি পেলাই প্ৰণিপাত কৰিছোঁ মান মৰ্যাদাটো আপোনাৰ হওক প্ৰভু আপুনি জীৱিত আপুনি সত্য আপুনি পবিত্ৰ হোৱা কেনে আপুনি আমাৰ সৃষ্টিকৰ্তা মালিক হোৱা কেনে মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ এই মত আপোনাৰ ওচৰত চাপিছোঁ আপোনাক সেৱা কৰিব কেনে হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আজি আপুনি আমাক প্ৰেম কৰা কেনে প্ৰভু আজি সুন্দৰ দিন দিছে ও পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আজি বহুত মানুহে এই দিনটো চাব পাৰ নাইকিয়া মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে দুখত বেমাৰ আজাৰত পৰিছে কিন্তু আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ কৰা কেনে আজি এই সাৰ্ভিসত আমি এটেণ্ড হ'ব পাৰিলোঁ আৰু প্ৰভু আপোনাৰ ওচৰত চাপি পেলাই মূৰ দুৱাব কেনে সুন্দৰ সময় দিয়া কেনে ধন্যবাদ দিছোঁ এই মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু আপুনি যেনেকৈ আমি থাকিব লাগে এনেকৈ আমি আপুনি বিচৰাৰ দৰে আমি থাকিব পাৰ নাইকিয়া প্ৰভু মোৰ ভুল পান্তি আৰু ইয়াতে থকা যিমান সন্তান চবে মূৰ দুৱাইছে তেওঁলোকৰ অপৰাধটো ভুল পান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক লগতে অনলাইনৰ যোগেদি থকা ভাই ভনী চবৰো ভুল পান্তি ক্ষমা কৰা আমাৰ মাজত থকা যিমান অসুচিতা আত্মা চব আমাক প্ৰাৰ্থনা গীৰ্জা কৰিব কেনে নিদিয়া ঈশ্বৰ চাপিব কেনে দিয়া ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিব কেনে নিদিয়া সেই অসুচি আত্মা চবক মই প্ৰভু যীশুৰ নামত মই খেদিছোঁ মোৰ জীৱনৰ পৰা আৰু ইয়াত বহি থকা প্ৰত্যেক ভাই ভনী জীৱনৰ পৰা অসুচি আত্মা চব যীশুৰ নামৰ পৰা ওলাই যা অনলাইন যোগেদি যিমান চবে ইয়াত এটেণ্ড কৰিছে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ দুখ কষ্ট বেমাৰ আজাৰ ফান পৰীক্ষা বিপদ আনি দিয়া অসুচি আত্মা চব বেমাৰী আত্মা যীশুৰ নামৰ পৰা ওলাই ধৰা অ পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি আহক আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ উচিত পবিত্ৰ কৰক আৰু আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু আজি যিটো ইয়াতে সানডে সাৰ্ভিস আছে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰক যি সন্তানে আপোনাৰ জীৱন জল বাক্য লৈ পেলাই আহিব প্ৰভু তেওঁৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰক প্ৰভু এই সন্তানটো খাৰাপ কিন্তু আপুনি তেওঁৰ মুখত থাকি পেলাই কওক প্ৰভু আমাক কি লাগে কিয়নো আপুনি ভূত ভৱিষ্যত বৰ্তমান জনতা ঈশ্বৰ হয় আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক আৰু এই বচনৰ দিগে আমি পিতা আত্মাত থাকিব পাৰিম আৰু আপোনাৰ ইচ্ছাৰ দৰে আমি চলিব কেনে পাৰিম ধন্য হওক প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ আৰু অনুগ্ৰহ কৰা কেনে লোক প্ৰভু পৰমেশ্বৰ মই নিজকে আৰু এই সাৰ্ভিসটো আপোনাৰ শক্তিশালী হাতৰ তলত সদাই দিছোঁ প্ৰাৰ্থনা নাজৰত প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ আমেন Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, my dear Pastor of this. ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু যি ভাই ভনীসকল আজি ইয়াতে আছে আৰু অনলাইনৰ যোগেদি যিসকল আছে ফেচবুক লাইভ ইউটিউব লাইভৰ যোগেদি মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু যীশুৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ আমাৰ সকলোৰে লগত থাকক আমি এটি গীত গাম ধৰ্মগীতৰ পৰা আৰু সেই গীতটো হৈছে অসমীয়া 6 We'll sing a song from our hymnal That is 6 We praise thee O God যিসকলে পাইছে 6 নম্বৰ ধৰ্মগীতৰ 6 নম্বৰ আৰু আমি যিসকলে পাইছোঁ থিয় হ'ম হে পিতৃ কৰো তোমাৰ প্ৰশংসা গান নিজ পুত্ৰক দান দিলে
দিলা নৰৰ পৰিত্ৰাণ হালেলুয়া তোমাৰ গৌৰৱ হালেলুয়া আমেন হালেলুয়া তোমাৰ গৌৰৱ জি উঠক মোৰ মন পৈনাত্মাৰ কাৰণ স্তুতি কৰোঁ ঈশ্বৰ তেওঁ ত্ৰাতক দেখুৱাই গুচালে আন্ধাৰ হালেলুয়া তোমাৰ গৌৰৱ হালেলুয়া আমেন হালেলুয়া তোমাৰ গৌৰৱ জি উঠক মোৰ মন সকলো গৌৰৱ মৰমেৰ পোৱালি তেওঁ পাপৰ ভাৰ বৈ দুখ গুচালে পাপী হালেলুয়া তোমাৰ গৌৰৱ হালেলুয়া আমেন হালেলুয়া তোমাৰ গৌৰৱ জি উঠক মোৰ মন জি উঠক মোৰ মন হৃদয় প্ৰেম পূৰ্ণ হওক সকলোৰে মনত প্ৰেমৰ জুই জ্বলক হালেলুয়া তোমাৰ গৌৰৱ হালেলুয়া আমেন হালেলুয়া তোমাৰ গৌৰৱ জি উঠক মোৰ মন আটাই বহিব परमेश्वर ने सुंदर समय हमें दिया और आज ये दिन यहोवा ने बनाया है और इसीलिए हम लोगों को सभी जो परमेश्वर को हम लोग जानते हैं विश्वास करते हैं आज का दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड इट द लॉर्ड मेड द 7th day all 7 days but he blessed the last day that is called Sabbath day he blessed it because it was beautiful आज का जो दिन है परमेश्वर ने आशीष किया और इसको उसने अच्छा देखा उसको बहुत अच्छा लगा कि आज का दिन पूरा काम हो गया और होने के बाद परमेश्वर ने इस दिन का ऊपर आशीष किया और इसीलिए हम लोग इसको संडे मनाते हैं नेपाल में सैटरडे को वो लोग विश्राम लेते हैं जो अरबियन कंट्री लोग है फ्राइडे को लोग मानते हैं तो जो अपना सुविधा का अनुसार हम लोग दिन को हम लोग संडे को मनाते हैं मतलब विश्रामवार को मनाते हैं ये बात ज़रूरी मैं नहीं समझता हूँ कि संडे को ही हम लोग को मतलब इंडिया में हम लोग है इसीलिए संडे हम लोग के लिए रेस्ट विश्रामवार है गवर्नमेंट हॉलीडे प्लस हम लोग आज का दिन क्या करते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं लेकिन अरबियन कंट्री गल्फ कंट्री में वो लोग फ्राइडे को मनाते हैं तो इसीलिए वहाँ चर्च फ्राइडे को होते हैं नेपाल में सैटरडे को होते हैं इसीलिए वहाँ चर्च सैटरडे को होते हैं इसीलिए एक दिन सप्ताह में परमेश्वर के लिए हम लोग निकाल के उसको धन्यवाद देना है उसका स्तुति प्रशंसा करना है आज जो प्रभु का वचन मैंने यहाँ लेके आज की बाइक को मैं आनिसु हे बाइक को तो है प्रथम पीटर 2 अध्याय 9 और 10 पद 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10 तो এই বাক্য ওপৰত আমি কিছু কথা আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমি ঈশ্বৰে আমাক খ্ৰীষ্টত কেনে দেখা পায় how God look us all of us through Jesus Christ যীশু খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ দেখা পায় परमेश्वर हम लोग को देखते हैं ऊपर से परमेश्वर हम लोग देखते रहते हैं
लेकिन परमेश्वर हम लोग जब यीशु के द्वारा देखते हैं तो हम लोग को कैसे दिखाई देता है, उनका ऊपर ये प्रीचिंग है, उनका ऊपर ये वचन है। मैं অসমীয়াত पढ़ी दिम प्रथम पीटर 2 अध्याय 9 और 10 पद। किन्तु যিজনাই আন্ধাৰৰ পৰা তেওঁৰ আচৰিত পোহৰলৈ তোমালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিলে, তোমালোকে যেন তেওঁৰ সদ্গুণ প্ৰকাশ কৰা, এই কাৰণে তোমালোক মনোনীত বংশ, ৰাজকীয় পুৰোহিতসমূহ, পবিত্ৰ জাতি আৰু ঈশ্বৰৰ নিজ অধিকাৰৰ অৰ্থে এক বিশেষ লোক হৈছা। আগে তোমালোক প্ৰজা নাছিলা, কিন্তু এতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰজা হ'লা। দয়াৰ পাত্ৰ নাছিলা, কিন্তু এতিয়া দয়াৰ পাত্ৰ হ'লা। 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10, my NIV Bible says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. This is the word of God. Amen. आज इस वचन को देखने का पहले ये एक ट्रांसफॉर्म्ड परिवर्तन होने वाला जो व्यक्ति लोगों को एड्रेस करके पीटर ने लिखा था लेटर। परिवर्तन हो जोआ ईश्वरक चिनि पोৱা সেই ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে পিতৰে এই কথাবিলাক লিখিছিল। যেতিয়া আমি পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ, চেঞ্জ, আৰু সেইটো হৈছে স্পিৰিচুৱেল মিনিঙত, আত্মিক কথাত আমি পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছোঁ, জাগতিক ফালৰ পৰা আমি কোৱা নহয়। যেতিয়া আমি পৰিৱৰ্তন হওঁ, পৰিৱৰ্তনৰ পিছৰ জীৱনটো ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিছে। পৰিৱৰ্তনৰ আগৰ জীৱনটো, এ লাইফ बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग, परिवर्तन, चेंज होने का पहला जीवन। मनुष्य, हर एक मनुष्य एक स्थिति पर रहते हैं। दे आर लिविंग इन ए कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिंफुल लाइफ, पापोर जीवन। परिवर्तन होने का पहले, यीशु को जानने का पहले जो व्यक्ति एक जीवन बिताते हैं उसको पापमय जीवन कहा जाता है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हर एक व्यक्ति को पापमय जीवन में से निकाल के जो पवित्र जीवन, जो अभी हम लोग इसमें पढ़ा, ऐसा एक जीवन देने के लिए चाहते हैं और वो बहुत ही हम लोग को ऊपर आशा करते हैं। तो व्हाट इज सिन, पाप क्या है बोल के अभी फिर से हम लोग को पूछने से हम लोग क्या है, बहुत से आदमी लोग उसको जवाब नहीं दे सकते। व्हाट इज सिन, हम लोग बहुत सा व्यक्ति लोग, अगर हम लोग जैसे टीवी जो रिपोर्टर लोग उसमें इंटरव्यू लेते हैं बाहर कोई कोई जगह जाके, अगर हम लोग इंटरव्यू ले पाप क्या है तो बहुत सा व्यक्ति लोग पाप का अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग जो उसका संज्ञा जो देंगे, डेफिनेशन देंगे। लेकिन डिसओबेइंग द गॉड्स कमांडमेंट इज सिन, परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करना ही क्या है, पाप है। डिसओबेइंग द रूल्स ऑफ गॉड, डिसओबेइंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड, ट्रांसग्रेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और लॉ इज कॉल्ड सिन। नियम को तोड़ना, परमेश्वर ने जो नियम बना के दिया है उसको तोड़ना ही पाप है। और ये पाप हम लोग का शुरुआत हुआ जब आदम और हवा, हम लोग हर एक जितना भी हम लोग दुनिया में जो भी हम लोग मनुष्य है, अपना अपना रिलीजन में आदम बाबा को जानते हैं, आदम को जानते हैं। बहुत कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा शायद अपना धर्म में रहने वाला कि आदम को नहीं जानते हैं। आदम और हवा का जो उसका जो ट्रांसग्रेशन, वो लोग जो पाप को, परमेश्वर का नियम को, कायदे को तोड़ा, उसका बाद उनका जीवन में पाप शुरुआत हुआ। पापमय जीवन मनुष्य का दो चॉइस का ऊपर है। वी आर सिनर्स बाय नेचर
एंड वी आर सिनर्स बाय सच, मैं पहले भी इस वचन को बोला था। वी आर सिनर, हम लोग पापी है बाय नेचर, स्वभाव के द्वारा, बाय नेचर जन्म सिद्ध, जो हम जन्म हुआ तब से, बाय जब आदम और हवा का वंश होने का नाते कोई भी मनुष्य डिनाई नहीं कर सकता है, कोई भी मनुष्य नहीं बोल सकता है कि मैं आदम का लाइन से नहीं आया हूं, मैं तो अलग से बनाया गया हूं। कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता। কোনো মানুহে এইটো ক'ব নোৱাৰে যে মই আদমৰ পৰা জন্ম হোৱা নহয়, মইতো আদমৰ পৰা অহা নহয়, মই বেলেগকৈ জন্ম হৈছোঁ, কেনেকৈ মই আদমৰ পাপটো মই ল'ম? কিয়নো আমি শাস্ত্ৰত পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে ঈশ্বৰে মানুহ সৃষ্টি কৰিলে, সেই মানুহৰ নাম ঈশ্বৰে আদম ৰাখিলে, আৰু সেই আদমৰ কামিহাৰ ৰিবৰ পৰা এডাল ৰিব লৈ তাৰ পৰা তেওঁ মহিলা সৃষ্টি কৰিলে, যাৰ নাম ইভ। এয়া হৈছে আদম আৰু ইভ বা আদম আৰু হাৱা। গতিকে আমি আদম আৰু হাৱাক অস্বীকাৰ কৰি নাই মই তাৰ পৰা জন্ম হোৱা নাই, বা আমি ডাৰউইনৰ থিয়ৰী মানি পিনে বান্দৰৰ পৰা মানুহ হৈছে বুলি যদি আমি এইটো কি বুলি কয়, এইটো ইভলিউশ্যন, এই ইভলিউশ্যনটো যদি আমি মানিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমি মিছাত আছোঁ, অসত্যত আছোঁ। আমি বান্দৰৰ পৰা মানুহ হ'লোঁ বুলি ভাবাটোতো অসত্য হয়, এইটো থিয়ৰী হয়, ডাৰউইনৰ থিয়ৰী, ভাৱনা, মতবাদ বুলি কোৱা হয়। ডাৰউইনে ভাৱনা কৰিছিলে, কিন্তু সঁচাটো কি? ঈশ্বৰৰ বাক্য। দ্য ৱৰ্ড অফ গড ইজ ট্ৰুথ। God is truth, that's why his each and every words are true. परमेश्वर का हर एक वचन जो है क्या है, वो सही है, क्योंकि परमेश्वर सही है। आप लोग अगर इसमें देखिएगा 1 जॉन चैप्टर 1, अगर आप लोग पढ़ें 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स, पहला यूहन्ना 1 अध्याय, और आप उसमें देखिएगा वर्स God is light, yes, 5. God is light, in him there is no darkness at all. परमेश्वर जो है वो उजाला है और उसमें अंधकार एक तिनका, एक बिंदु, एक जो मास्टर सीट का जैसा भी उसका अंदर में अंधकार नहीं है। ईश्वर पोहर है, এইকাৰণে ঈশ্বৰৰ কোনো ডাৰ্ক সিক্ৰেট বুলি কয়, ঈশ্বৰৰ কোনো ডাৰ্ক সিক্ৰেট নাথাকে। যদি কাৰোবাৰ ডাৰ্ক সিক্ৰেট থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ঈশ্বৰ হ'ব নোৱাৰে। যিজনে আমাক শাসন কৰিব, যিজনে আমাক চলাব, যিজনে আমাক আজি জন্ম দিলে, যিজনে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি কৰিলে, তেওঁৰ কিছুমান বোলে গুপুত অধ্যায় আছে। परमेश्वर का ऐसा कोई डार्क सीक्रेट है। अगर कोई बोलता है कि परमेश्वर का बहुत गहरा जो डार्क सीक्रेट, तो मैं कहता हूं वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? उसका डार्क सीक्रेट है। God is a God. He is God, like He is a crystal clear God. वो अंधेरा अपना कुछ छुपा के रखेगा और मनुष्य को नहीं देगा, वो मैं नहीं दूंगा, ये देने से वो लोग बहुत वो हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर क्रिस्टल क्लियर है, एकदम बिल्कुल साफा है। इसीलिए बाइबल कहती है God is a light and there is no single pinch of darkness there. एक छोटा सा तिनका भर भी उसमें अंधकार नहीं है। तो आज जो हम लोग देखा है, वी आर सिनर, हम लोग पापी है। दो हम लोग का जो उसमें ऑप्शन है। नंबर 1 बाय नेचर, हम लोग आदम और हवा से जन्म हुआ, जितना भी हम लोग मनुष्य है हम लोग पापी है, और उस पाप को हम लोग दोगुना और करते हैं। जैसे हम लोग चॉइस कर लेते हैं पाप में जीवन में बिताना है, टू लिव इन सिंफुल लाइफ, पापमय जीवन में बिताना, पापर जीवन थका तो विचारो, हेतु ऐसे बाय चॉइस। बिफोर नोइंग जीसस, यीशु को जानने का पहले मनुष्य पापमय जीवन में रहता है। पापमय जीवन, व्हाट इज सिंफुल लाइफ? पापर जीवन तो कि है? এতিয়া আমি কি জীৱনত আছো, আগতে আমি কি জীৱনত আছিলো? আগতে যীশু খ্ৰীষ্টক নজনা অৱস্থাটো হয় পাপময় জীৱন। আমি আৰু আপুনি যদি প্ৰথম কৰিন্থিয়া 6 অধ্যায় 9 पदों पर 11 पद, अगर हम लोग 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 11 अगर हम लोग पढ़ेंगे, 1 Corinthians चैप्टर 6 वर्सेस 9 to 11, मैं इसमें NIV बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. क्या तुम लोग नहीं जानते हो, पापी दुष्ट काम करने वाला जो व्यक्ति
परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। এইটো নাজানা নেকি অসমীয়া বাইবেলত কৈছে তোমালোকে নাজানা নেকি যে পাপ কৰা মানুহবিলাকে পাপ কৰোতাবিলাকে স্বৰ্গ ৰাজ্যত সোমাব নোৱাৰে। চাওক ইয়াতে প্ৰথম কৰিন্থিয়া 6 অধ্যায় আমি এইটো 9 পদৰ পৰা যদি পাঠ কৰোঁ, নতুবা অধৰ্মীবিলাকে যে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত অধিকাৰ নাপাব ইয়াক তোমালোকে নাজানা নেকি? তোমালোক ভ্ৰান্ত নহবা। डिसीव्ड, कोई भी ठगना आपको ठगना नहीं चाहिए। मैं आप अंधकार में नहीं रहना चाहिए। बाइबल कहती है कि तो अंधकार में मत रहो, ऐसे भुलावे में बहकावे में मत रहो, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में आपको दिखाना चाहता है कि अधर्मी व्यक्ति कोई भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। नॉट ए सिंगल सिनर कैन एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। अगर मनुष्य पापी है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो पापमय जीवन में है। और पापमय जीवन का जो इसमें डेफिनेशन लिखा गया है वर्स 10, बेभिचारी, देवपूजक, परस्त्रीगामी, हुखाभिलाखी, पुंमैथुनी, चोर, लोभिया, मतलिया, निंदक बा अपहारक এইবিলাকে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত অধিকাৰ নাপাব। So before knowing Jesus, we live in a such world, in a sinful world that we are bound to do, we are bound to sin. পাপ কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হৈ থাকো। আপুনি এটা নহয় এটা পাপত আপোনাক শয়তানে বা দুষ্ট আত্মাই বা অন্ধকাৰৰ শক্তি আপোনাক ৰাখে। ইয়াতে আপুনি বহুত আছে, আমি এইখিনি বাৰে বাৰে আমি পঢ়ি থাকিলে আপুনি স্পষ্টকৈ গম পাব। neither the sexually immoral nor idolaters, শাৰীৰিকভাৱে বা আত্মিকভাৱে ব্যভিচাৰ কৰা মানুহবিলাক কেতিয়াও স্বৰ্গৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমাক শয়তানে শাৰীৰিক বা আত্মিক ৰূপে ব্যভিচাৰত ৰাখে। আকৌ ইয়াতে কৈছে যে adulterers or male prostitutes, পৰস্ত্ৰীগামী, হুখাভিলাষী, পুংমৈথুনী, চোৰ, লোভিয়া, মতলীয়া, নিন্দক বা অপহাৰক, এটা নহয় এটা পাপত আমি পৰি থাকোঁ বা আমি সেইটো পাপতেই আমি জীয়াই থাকোঁ, সেইটো পাপতেই আমি জীৱন ধাৰণ কৰোঁ আৰু আমি নাজানো যে এইটো পাপ হয়। আৰু যেতিয়া আমাৰ মৃত্যু হৈ যায় তেতিয়া আমি বাকী জীৱিতসকলে ভাৱনা কৰোঁ যে এই ব্যক্তিজনে এতিয়া স্বৰ্গগামী হ'ল বা হেভেনত পালে। बट ये बात बहुत ज़रूरी है आपको ये जान लेना, ये बात बहुत ज़रूरी है आपको कि समझ लेना। आप एक पापमय जीवन में हैं, आप एक अधार्मिक जीवन में हैं, आप पाप में आप डूबा हुआ है और जब आपको देहांत हो जाते हैं या आप दुनिया को छोड़ देते हैं तो बाइबल कहती है कि आप हेवन में स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पाप में था। लेकिन हम लोग दुनियावासी क्या सोचते हैं कि ये अभी क्या हो गया, हेवन पहुंच गया, परलोक गमन हो गया। बाइबल कहते हैं, बाइबल अस्वीकार करते हैं, बाइबल उसको कभी नहीं मानते हैं। इसलिए पाप जो यीशु को नहीं जानने वाला, यीशु का जो साथ में उसका संपर्क नहीं होने वाला लाइफ जो है वो पाप में बिताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं 1 जॉन पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 4 से लेकर 9 पद, 1 जॉन चैप्टर 3 verses 4 to 9, যিকোনোৱে পাপ আচৰণ কৰে তেওঁ বিধান লংঘন কৰে আৰু পাপেই বিধান লংঘন। व्हाट इज सिन? इसमें लिखा है पाप क्या है। जिसने पाप आचरण करे, जो व्यक्ति पाप काम करते हैं, पाप व्यवहार करते हैं, वो विधान, वो लॉ को तोड़ते हैं और लॉ को तोड़ना, लॉ को उल्लंघन करना ही पाप है। सो आज आपको ये सोचना है कि आप लॉ, परमेश्वर का दिया हुआ लॉ को पालन कर रहा है या परमेश्वर का लॉ को वायलेट करके आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऐसा लाइफ बिता रहे हो। Are you living according the will of God? Are you living as the Lord has give you the rule, or are you living in a transgression that you are breaking the all laws of God? परमेश्वर का आप लॉ को तोड़ के आप चल रहे हो या आप नहीं, मैं परमेश्वर का लॉ को मान के चल रहा हूँ। आप इसमें बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अभी आपको मैं
यीशु का पीछे आने का, यीशु का बाद आने का जीवन मैं नहीं बता रहा हूँ, यीशु का नहीं जाने का पहले का जीवन का बारे में बता रहा हूँ। Verse 5, আৰু তোমালোকে জানা যে পাপ দূৰ কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰকাশিত হ'ল আৰু তেওঁত কোনো পাপ নাই, যিকোনো তেওঁত থাকে তেওঁ পাপ নকৰে, যিকোনোৱে পাপ কৰে তেওঁক দেখা নাই আৰু জনাও নাই। Even now अगर अभी भी आप कहते हैं कि आप मसीही है, यू आर ए क्रिश्चियन, आप अच्छा व्यक्ति है, आप मैं चाट जाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, फिर भी आप वो लॉ को तोड़ रहा है, बार बार परमेश्वर का विरुद्ध में पाप कर रहा है, तो बाइबल कहती है कि आप अभी तक यीशु को जाना ही नहीं है। आप यीशु को जाना ही नहीं है, क्योंकि यीशु को जानने वाला व्यक्ति एक बार आप यीशु का साथ एनकाउंटर, यीशु को साथ आप मुलाकात हो गया, यीशु को आपने जान लिया, तो आप जब यीशु को जानने के बाद आपका जीवन जो है परिवर्तन होता है। आपका जीवन जो है आप लॉ को तोड़ने के लिए आप कोशिश नहीं करेगा, आप हमेशा लॉ को मानने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा को अनुसार आप चलने के लिए कोशिश करेगा। वही है एक क्या है, ट्रांसफॉर्म लाइफ, परिवर्तित जीवन। तो यदि আপুনি কয় নহয় মই এটো কি কয় এটো মই তো ভুল মোৰ যোগেদি ভুল হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে আপুনি এতিয়াও যিশুক জনা নাই। There are many Christians in this world. They are living in this world that they say that I'm Christian, but Bible says they even did not know Jesus. वो यीशु को जानते ही नहीं है। वो यीशु sin, और 7 ग्रेटेस्ट सिन में आपको जो है उसमें 7 अलग अलग किस्म का पाप का बारे में लिखा है, और उस 7 अलग अलग किस्म का पाप में एक है गर्व, अहंकार या प्राइड। आज मनुष्य का अंदर में अहंकार या गर्व या प्राइडनेस आता है, और वो पाप है। चाहे आप मसीही हो या गैर मसीही हो, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप अभी भी गर्व में हो, अहंकार हो आपका कुछ चीज़ों के लिए, आपका सुंदर चेहरा के लिए, आपका धन संपत्ति के लिए, आपका एजुकेशन के लिए, आपका जो भी नौकरी के लिए, जितना भी आपका जो कुछ के लिए आप गर्व करते हो, तो यू आर स्टिल इन सिन, यू आर लिविंग ए सिंफुल लाइफ। So remember, to be remembered, that a sinful life, a person who is living a sinful life, as the Bible says, he cannot enter in the kingdom of God. Number 1 is pride-ness. पहला जो है अहंकार बा गर्व। दूसरा है greed या लोभ। लोभ जो है शैतान हमको, जो हम लोग को दूसरा वेपन है पाप, वो है लोभ। लोभ रहित, दूसरा का चीज़ को बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कम दामी हो, चाहे वो मतलब जैसे हो, दूसरा का चीज़ हमें बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। वो पहनने वाला शर्ट मुझे अच्छा लगा, वो पहनने वाला जिसका ऑर्नामेंट्स मुझे अच्छा लगा, उसका घड़ी मुझे अच्छा लगा, उसका घर बहुत सुंदर है। हम अपना परमेश्वर जो दिया है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरा का चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोभ है, मुझे भी होने से कितना अच्छा था, वो वो चीज़ मेरा पास आने से कितना अच्छा होना था। हम लोग लोभ में है, ग्रिड। दूसरा है लास्ट, LUST, नॉट LAST, लास्ट, अभिलाष। शरीर का जो प्यास को बुझाने के लिए, फिजिकल जो हम लोग का जो भी क्वींस जो हम लोग का थर्स्ट है शारीरिक रूप का, उसको बुझाने के लिए कोशिश करने वाला, ये है अभिलाष। मानसिक अभिलाष, शारीरिक अभिलाष, मानसिक अभिलाष। আমি হেতুৰ কাৰণে বেছি চিন্তা কৰোঁ, কিয়নো আমাৰ পাপে আমাক কি কৰে, মাংসৰ অভিলাষত ৰাখে। আজি মাংসৰ অভিলাষত থকাৰ কাৰণে মানুহে পাপৰ পৰি পাপ কৰে। ৰেপ বা আজি যিমানবিলাক আজি মাৰ্ডাৰ বা আজি যিবিলাক আজি এনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া কাৰ্যবিলাক হৈ আছে, যিবিলাক প্ৰষ্টিটিউশ্যন লাইনত গৈ আছে, মানুহবিলাকে লৈ গৈ আছে, ছোৱালীবিলাকক, কিহৰ কাৰণে? এইটো লাষ্ট, অভিলাষ। চাहे যিমান ধনী মানুহ হওক, চাहे যিমান ডাঙৰ মিনিষ্টাৰ হওক, চাहे যিমান এইটো মানে এডুকেটেড মানুহ হওক, কিন্তু লাষ্ট অভিলাষে মানুহক পাপলৈ নিয়ে। এনৱে হিংসা কৰা, তাৰ কিয় হ'ব, মোৰ কিয় নহ'ল, তাৰ এইটো কেলে আছে, মোৰ কেলে নাই। তো এইটো হৈছে অভিলাষ। মোৰ হ'ব লাগে, আনৰ কাৰো হ'ব নালাগে, মোৰ লগত থাকক আৰু কাৰোলৈ নাথাকক, সেইটো হৈছে অভিলাষ, হিংসা কৰা।
তাৰপিছত হৈছে গ্লাটুনি। এইটো আমাৰ বহুতৰ মাজত কেতিয়াবা দেখা যায়, খকুৱামি বুলি কয় আচলতে। গ্লাটুনি, খকুৱামি। আমি जो ज़्यादा मतलब ये खाएगा वो खाएगा ये खाएगा वो खाएगा करने वाला जो व्यक्ति है उसको वो भी एक पाप है। लिमिटेड परिमित भोगी বুলি অসমীয়াত কৈছে। মডাৰেট ইটাৰ, বহুত নহয়, নট মই কোৱা নাই যে একেবাৰে স্মল ইটাৰ হ'বৰ কাৰণে, বাট ইউ মাষ্ট বি এ মডাৰেট ইটাৰ, নট এ লাৰ্জ ইটাৰ। বহুতখিনি খোৱা একদম মানে নহয়, মডাৰেট ইটাৰ। বাইবেলে আপোনাক কৈছে গ্লাটুনি ইজ এ চিন, খকুৱামি কৰা। তাৰপিছত কৈছে ৰেট, ক্ৰুড কৰা, কুপ কৰা। খং কৰাটো বেলেগ, এংগাৰনেছ ইজ ডিফাৰেণ্ট, ৰেট ইজ ডিফাৰেণ্ট। ৰেট, খংটো এতিয়া উঠে আৰু অলপ পিছত কি হয়, আঁতৰি যায়, শান্ত হৈ যায়। কিন্তু ক্ৰুড বা ৰেট যিটো আছে ই বহুত দিনলৈকে থাকে, আনকি বছৰ বছৰ ধৰি লাষ্টিং কৰে। আৰু যেতিয়ালৈকে এইটো ৰিভেঞ্জ নলয় তেতিয়ালৈকে এই ক্ৰুডটো শান্ত নহয় মানুহৰ জীৱনত, থাকি যায়। এই মোৰ বংশৰ লগত কাজিয়া, এইটো মোৰ একদম ফেমিলিৰ লগত কাজিয়া, এইটো বংশ ধৰি এইটো বাঢ়ি যায়। কেতিয়াবা তাক অকলে পালে তাক অপকাৰ কৰিব, তাক অকলে পালে অপকাৰ কৰিব। চ' ইয়ে হে ৰেট, ক্ৰুড, এণ্ড ফাইনেলি হে স্লট, মানে এলেহুৱা। স্লট, এলেহুৱা, আলসী आदमी, सोते रहना, काम नहीं करने वाला, उसको बिस्तरा में सब कुछ उसका चाहिए, ऐसा व्यक्ति। तो ये 7 किस्म का डेडलीस्ट सिन बोल के बोला है बाइबल में। डेडलीस्ट, जैसे डेडलीस्ट वेपन होता है उसी तरह ये डेडलीस्ट सिन, ऐसा पाप जो है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। अगर आप यीशु को जानने के बाद भी ये पाप में आप डूबा हुआ है, अभी भी आप यीशु को नहीं जानते हैं। जो यीशु को नहीं जानते तो है ही है, लेकिन जो यीशु को जानने के बाद भी आप अगर इसी पाप में डूबे हुए हैं तो आप यीशु को नहीं जानते, आप यीशु को नहीं जानते। इसीलिए आज इस वचन को मैंने आपके लिए, मैं सबके लिए लेके आया हूँ कि ये है पापमय जीवन। और ऐसे पापमय जीवन को परमेश्वर ने अपना दोनों आंख उठा के नहीं देख सकता। जब ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर देखते हैं तो उसको पाप दिखाई देता है, उसको पाप दिखाई देता है। इसीलिए परमेश्वर अपना मुंह को घुमा लेता है, उस पाप की तरफ नहीं देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पाप को देख ही नहीं सकता। हग्गई चैप्टर में लिखा है, गॉड इज सो होली दैट ही कैनॉट इविल, और जो पाप है उसको बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। ईश्वर इमाने पवित्र যে পাপটো একেবাৰে চাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া এইবিলাক দেখি পায় মানুহৰ জীৱনত, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহবিলাকক ঈশ্বৰে অনুগ্ৰহ নকৰে, তেওঁলোকলৈ দৃষ্টি নিদিয়ে, তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ নকৰে, তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা নহ'লে তেওঁলোকৰ একোতেই ঈশ্বৰে কাণ নিদিয়ে। কেলে? পাপ দেখা পায় ঈশ্বৰে। I am talking about life before knowing Jesus, यीशु को जानने का पहले का जीवन का बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जब व्यक्ति यीशु को जानते हैं, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये तो पाप में है, हम लोग प्रभु हम चिल्लाते हैं। दाऊद ने कहा, प्रभु मैं रोता हूँ, मैं आपका आगे बिलखता हूँ, मेरा प्रार्थना सुनता क्यों नहीं है प्रभु, आप क्यों रिप्लाई देते हैं। दाऊद ने बहुत बार बाइबल में जो साम्स में लिखा है, मैं रोता हूँ प्रभु, प्रार्थना क्यों नहीं आता है। आइजे ने उसमें रिप्लाई दिया है कि तेरा पाप ही जिससे परमेश्वर का मुंह जो ढका है, छुप जो अलग करके रखा है। तुम्हार पापे और तुम्हार मजत एटा वाলৰ নিচিনা দেৱাল বনাই দিছে যে ঈশ্বৰে তোমালৈ নাচাই চাব নোৱাৰে আৰু তুমি ঈশ্বৰলৈ কৰা প্ৰাৰ্থনাটো নুশুনে। এইটো হৈছে ঈশ্বৰক জনা, যীশু খ্ৰীষ্টক জনাৰ আগৰ জীৱন। কিন্তু ঈশ্বৰে এতিয়া মানুহক মৰম কৰে। The magic verse of this the Bible is John 3:16, magical verse। এইটো হৈছে ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে তেওঁ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে, যাতে যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰে তেওঁ নষ্ট নহয় বা নাশ নহয়, তেওঁ অনন্ত জীৱন পায়। ঈশ্বৰে নিজৰ জগত পুত্ৰক পঠাই দিলে যাতে যিকোনো তেওঁ বিশ্বাস কৰে। এতিয়া ঈশ্বৰে যীশুখ্ৰীষ্টক কিয় পঠালে? ঈশ্বৰে যীশুখ্ৰীষ্টক কিয় পঠালে? परमेश्वर ने यीशु को भेजने का एक ही मकसद था कि जो व्यक्ति यीशु को विश्वास करे। मैंने लास्ट वीक में बताया था, आप लोग मेरा यूट्यूब को देखने से आपको पता चलेगा, या आपको जो ये लाइव को मेरा फेसबुक में देखने से पता चलेगा। उसमें मैं इटर्नल लाइफ का बारे में बताता। व्हाट इज इटर्नल लाइफ? टू नो द ट्रू गॉड, नो टू नो यू द ट्रू गॉड एंड whom you have sent,
आपको जानना, जो सच्चा परमेश्वर आपको जानना और आपने जिसको भेजा और यीशु मसीह को जानना ही इटर्नल लाइफ है। इसलिए यीशु मसीह को दुनिया में प्रभु ने किस लिए भेजा? ताकि जो कोई उसको विश्वास करे वो नाश ना हो, क्योंकि पापी का अंत क्या है? पापी का अंत, पाप को क्या करेगा? वो आग में डालेगा, नरक में डालेगा। और हर एक व्यक्ति नरक जो पाप में डूबा रहेगा, पापमय जीवन में रहेगा, परमेश्वर उसको नरक का आग में उसको जलने देगा, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शंस फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए ऐसा कोई सारा नहीं है कि आप पाप में रहेगा और परमेश्वर को बोलेगा प्रभु मुझे स्वर्ग में ले जाओ, तो प्रभु आपको नहीं सुन पाएगा, क्योंकि उसका एक क्राइटेरिया है, उसका परमेश्वर का एक ऐसा उसका जो गुण है कि वो पाप को नहीं दे सकता। जब आपको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, आपको बचाने के लिए यीशु को भेज दिया कि आप यीशु को विश्वास करें, लेकिन आप पाप बहुत अच्छा लगता है, आप पाप में तैरने के लिए अच्छा लगता है, आप पाप में डूबने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आप बाद में जब आप मृत्यु का करीब आएंगे, कगार में आएंगे, जैसे आपको कैंसर पकड़ लिया, टीबी पकड़ लिया, आपको एक्सीडेंट हो गया, आप मरने के लिए जा रहे हैं, उस समय प्रभु बचाओ बचाओ बोलेगा, उस समय प्रभु बोलेगा तुम यीशु को विश्वास करो। आप यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, आपको जीवन समाप्त होता है। तो परमेश्वर के लिए क्या चाह रहा है? क्योंकि उसने बनाया गया है कि जो पापी है उसके लिए नरक, जो धार्मिक उसके लिए स्वर्ग। ये बनाया गया है। 2 डेस्टिनेशन है। 2 डेस्टिनेशन में एक पाप में जीवन बिताने के लिए नरक का आग, जो यीशु को जान के धार्मिक जीवन बिताएगा उसके लिए स्वर्ग। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजने का मकसद यही है, यह परमेश्वर का लाभ के लिए नहीं है, नॉट फॉर हिज ओन बेनिफिट, फॉर इट इज फॉर आवर बेनिफिट, टू रिसीव क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। ये कोई क्रिश्चियन को बढ़ावा देना नहीं है, ये किसी को चर्च को धनी बनाने के लिए आपको क्रिश्चियन होना नहीं है। आप कोई भी किसी को धनी बनाने के लिए आप क्रिश्चियन नहीं होते हैं, यीशु को विश्वास नहीं करते। आप यीशु को विश्वास इसीलिए करना है कि आप ये पाप में जीवन में जो आप बिता रहे हैं, इस पाप से छुटकारा पाने के लिए, और जब आप पाप से छुटकारा पाएंगे तो यीशु का लहू से आपको धो दिया जाएगा, आप सफा होंगे, और तब आप जिस समय दुनिया को त्यागेंगे उस समय आप एक धार्मिक व्यक्ति बन के स्वर्ग में जा पाएंगे। लेकिन जब पाप में आप पूरा डूबते हुए रहेंगे तो परमेश्वर के लिए कोई चारा नहीं है। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर हिम बट ही विल send you to the eternal, that हमेशा रहने वाला जो आग है उसमें आपके लिए जाने के लिए देगा। अभी मैं आपको इसमें मेन जो अभी यीशु को जानने वाला, ये यीशु का जानने का पहले, अभी यीशु का जानने वाला, यीशु को आप जान चुका है, आप अभी एक मसीही है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मसीही है कि आप यीशु का आप सोचते हैं कि मेरे द्वारा परमेश्वर का कोई भी आज्ञा को ना तोड़ा जाए, मैं परमेश्वर का आज्ञा को ना तोड़ूं, मैं परमेश्वर का आज्ञाओं को मान के चलूं, मैं बाइबल को ध्यान करूं, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में रहूं, मैं पवित्र आत्मा से भरपूर रहूं, मैं परमेश्वर का आगे घुटना टेक के प्रार्थना करूं। अभी आप एक परिवर्तित जीवन में बिता रहे हैं, आप एक ऐसा अच्छा जीवन बिता रहे हैं। इसी लाइफ के लिए प्रभु अभी कह रहा है, এইটোৰ কাৰণে আজি আপোনালোকক ঈশ্বৰে এতিয়া ক'ব বিচাৰিছে। সেইটোৱে হৈছে প্ৰথম পিতৰ 2 অধ্যায় 9 আৰু 10 পদ, 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. Listen very carefully. কিন্তু যিজনাই আন্ধাৰৰ পৰা তেওঁৰ আচৰিত পোহৰলৈ তোমালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিলে, আন্ধাৰত আছিলে, পাপত আছিলে, কিন্তু এটা আচৰিত পোহৰ, ডিভাইন লাইট, চকু দি দেখি নাপায়, চকু দি দেখিও নাপায় এইটো, কিন্তু ঈশ্বৰে যেতিয়া মাতে আপোনাৰ অন্তৰত থকা চকুটো মুকলি হয়। শয়তানে, ইভিল স্পিৰিটে, পাপে আপোনাক কি কৰে? অন্তৰ চকুটো যিটো আছে সদায় ঢাকি ৰাখে, মুদাই ৰাখে, এখন কাপোৰ দি ঢাকি ৰাখে। কিন্তু ঈশ্বৰে যেতিয়া মাতে তেতিয়া আপোনাৰ অন্তৰৰ চকুটো খুলি যায়। जब परमेश्वर आपको कॉल करते हैं, परमेश्वर जब आपको बुलाते हैं, तब आपका हृदय का जो दरवाजा है, जो हृदय का जो आपका आँख है, वो खोल जाता है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी
चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे ओ सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। मेरी चाहत है तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। आज प्रभु आपको बुला रहा है इसीलिए कि वो आपका हृदय को खोलने के लिए, आपका हृदय को खोलने के लिए, आपका जो तीसरी जो आँख हृदय में है उसको खोलने के लिए वो उसमें पट्टी लगाए है, पाप का पट्टी है। इसीलिए आपको ये दो आँख से जब आप देख रही है वही सच्चा आप समझ रहे हैं। Whatever you are seeing through your two naked eyes, you are thinking that all these are true, but these are not the true things you are seeing through your naked eyes. आपका आँख जो है खुला हुआ आँख है, इससे आप सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। जो हृदय जो आँख अभी शैतान पट्टी बांध के रखा है, पाप का पट्टी, उस पट्टी को जब तक आप खोलने नहीं देंगे तब तक आपको सच्चाई को पता नहीं चलेगा। आप भ्रांत में, अखमिया बाइबल कैसे भ्रांत ना होगा, भ्रांति में जीवन बिता रहे, भ्रांत में क्या कर रहे एक बार आप सोचिए। मैं बताना नहीं चाहता हूं पब्लिकली, आप क्या कर रहे एक बार सोचिए। वो आपका करना क्या उसी करने के द्वारा आप स्वर्ग प्रवेश कर पाएंगे? आपका वही जो आप जैसे बिता रहा है, आप जैसे अभी आपका जो चल रहा है लाइफ को, उसी लाइफस्टाइल के द्वारा आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे? कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर कहता है उसने आपको बुलाया है अंधकार से उजाले के लिए, फ्रॉम द डार्कनेस, वेरी डार्कनेस टू द लाइट, डिवाइन लाइट। স্বৰ্গৰ পোহৰ, স্বৰ্গীয় পোহৰৰ কাৰণে। আৰু স্বৰ্গীয় পোহৰটো যীশুখ্ৰীষ্ট হয়। কেলে এইটো বাইবেলত কৈছে যোহন 8:12 আই এম দ্য লাইট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। জন চেপ্টাৰ 8:12 যীশুখ্ৰীষ্ট কৈছে মই জগতৰ পোহৰ, আৰু যিকোনে মোৰ পিছে পিছে চলে তেওঁ আন্ধাৰত নপৰি তেওঁ জীৱনৰ পোহৰ পাব। আজি আপুনি পোহৰটো দেখা নাই, কিয়নো সেই পোহৰটো চাবৰ কাৰণে হ'লে অন্তৰত থকা পাপ লেতেৰা বেয়াবিলাক আপুনি ওলাই পেলাব লাগিব। आपको छोड़ना है, तब आप उस उजाला को देखेंगे। जब आप उस उजाला को पाएंगे तब आप उसका पीछे पीछे चलेंगे। इसीलिए इसमें लिखा है आपको इसलिए बुलाया गया है ताकि आप परमेश्वर का जो अच्छा गुण है आपका जीवन में प्रकाश हो। लेट द वर्च्यू ऑफ गॉड रिफ्लेक्ट्स इन यू। आपने रिफ्लेक्शन ऑन यू, आपको क्या करना है, आपको जो परमेश्वर का जो अच्छा गुण है आप में प्रकाश हो, रिफ्लेक्ट होबो कारणे। जेनेके आईनात पोहरটো रिफ्लेक्ट হৈ পিনে যায়, তেনেকে ঈশ্বৰৰ হসা ভাল গুণটো আপোনাৰ জীৱনত কি আছে रिफ्लेक्ट होबो कारणे, प्रतिबिंबित होबो कारणे आपनाक ईश्वरे मातिसे। परमेश्वर आपको बुला रहा है। जब आप प्रभु का पास आया है, अभी आप परमेश्वर यीशु को जान चुका है। नाउ अभी आप पापी था, लेकिन यीशु को जानने के बाद यीशु का लहू से आपको धो दिया गया। अभी परमेश्वर आपको कैसे देखेंगे? नाउ हाउ गॉड विल सी यू थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट কথা। আগতে আমাক দেখিলে পাপ লেতেৰা ঘিন একদম একটু মানে অপৰাধী ঈশ্বৰে আমাক এনেকুৱা দেখিছিলে, কেলে আমি যীশুক নাজানিছিলোঁ। এতিয়া যেতিয়া আমি যীশুক জানিলোঁ, এতিয়া যীশুক জনাৰ পিছত আমাক এতিয়া ঈশ্বৰে কেনেকৈ দেখে পায়। তেওঁ গড ইন ক্ৰাইষ্ট উই আৰ accepted by God। এতিয়া মই তেওঁক গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। ঈশ্বৰে এতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টক যেতিয়া আমি জানিলোঁ তেতিয়া ঈশ্বৰে কয় নাও, yes now you are acceptable। এতিয়া তোমাক মই গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম।
আগতে আমালৈ নাচায়, আগতে আমাক প্ৰাৰ্থনা নুশুনে, আগতে আমালৈ দৃষ্টি নকৰে, কিয়নো পাপক ঈশ্বৰে নাচায়। কিন্তু যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আমি পাপৰ পৰা মুক্তি পালোঁ, তেতিয়া মুক্তি পোৱাৰ কাৰণে যীশুখ্ৰীষ্টৰ যোগেদি ঈশ্বৰে আমাক কি কৰে? গ্ৰহণ কৰে। यीशु के द्वारा वो हमें अभी एक्सेप्ट करता है। मैं आश्चर्यचकित हो गया, वर्ल्ड फेमस व्यक्ति लोग, ऐसा कोई व्यक्ति का नाम मैं अभी बताऊंगा, वो एडॉप्टेड, उसको एडॉप्शन किया गया था। तुलोनिया पुतेक आছিলে। नंबर 1 बिल क्लिंटन, अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। तुलोनिया माने तेरे देवताक ढुकाई गल। बिल क्लिंटन का पिताजी जब गुजर गया तो उसका माँ दूसरा शादी किया, और दूसरा शादी करने के बाद 15 साल तक उसने अपना जो सौतेला बाप का टाइटल नहीं लिया था। 15 साल का बाद उसने अपना सौतेला बाप का क्लिंटन टाइटल लिया, और वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया अमेरिका का, अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। स्टीव जॉब्स जो एप्पल आईफोन का, वो भी एडॉप्टेड सन है। और नेल्सन मंडेला अफ्रीका का जो राष्ट्रपति था, नेल्सन मंडेला, वो भी एडॉप्टेड सन। जब एडॉप्शन नहीं किया था, एक व्यक्ति, मामूली व्यक्ति, वो चलने वाला था, मतलब ऐसे गुजार रहा था, लेकिन जब उसको कोई व्यक्ति उसको एडॉप्ट किया, हाँ, अपना नाम को दिया, अपना टाइटल को दिया, अपना अधिकार का उसको दे दिया कि आज इस घर का तुम एक सदस्य हो, तो उसका जीवन में कितना खुश। एक जो व्यक्ति जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ना माँ ना पिताजी का ठिकाना नहीं है, और रास्ता में घूमते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को जब आप उसको लेके आते हो अपना घर में और आपका परिवार का सदस्य बनाते हो, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जैसे मैंने अभी जो इसमें ये व्यक्ति लोगों, फेमस व्यक्ति लोगों का नाम आपने बताया, उसी तरह हम लोग ऐसा एक कोई मतलब हम कोई परवाह नहीं रहने वाला व्यक्ति था, हमको कोई नहीं जानने वाला, हमको कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, I have chosen you and I have appointed you। मैंने तुम्हें चूज किया है, मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, you are mine। मैं, परमेश्वर ने अपना जो टाइटल हमें दे दिया। परमेश्वर ने कहा, you are my sons and daughters, तू मेरा जो लड़का और बच्चा है। इसलिए 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 इसको अच्छा से पढ़ने। but you are not like that, for you have been chosen by God himself। We are chosen by God himself। परमेश्वर ने हमें खुद आके हमको चूज किया है। पूरा संसार में से हम लोग को उसको क्या किया, हम लोग को उसको उठाया, बिन के लिया परमेश्वर ने। इस गुटे সংসাৰৰ মাজৰ পৰা আমাক ঈশ্বৰে বাছি ললে। এডপ্টেড সন, আমি শয়তানৰ কাৰ্যত থকা, শয়তানৰ দাসত্বত থকা ঈশ্বৰে আজি আমাক পঠাই ললে। তাৰপিছত চোক ঈশ্বৰে মাতিলে, ইউ আৰ প্ৰিষ্ট অফ দ্য কিং। मामूली व्यक्ति নহয়, এতিয়া আপুনি ঈশ্বৰৰ ৰজাৰ কি হয়? আপুনি প্ৰিষ্ট মানে পুৰোহিত, ৰয়েল প্ৰিষ্ট। আপুনি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে, আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাটো সুন্দৰ ধূপৰ ধোঁৱা নিচিনাকৈ ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ যায়। when you pray, Bible says, when you pray, it's like a incense, ए धूपर धुआ निचिनाके एतो ईश्वৰৰ ওচৰত যায়। প্ৰিষ্ট আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাত ঈশ্বৰে শক্তি দিছে। ইউ আৰ হোলি এণ্ড পিয়ৰ, আপুনি পবিত্ৰ আৰু আপুনি একদম সফা। কোনে বনালে? ঈশ্বৰে আপোনাক বনালে। উই আৰ ভেৰি গডছ ভেৰি অন, ঈশ্বৰৰ একেবাৰে ওচৰত থকা। সেইকাৰণে ইয়াতে আমাক এইটো কি কয়, যীশুখ্ৰীষ্টৰ যোগেদি ঈশ্বৰে আমাক গ্ৰহণ কৰিলে। উই আৰ একচেপ্টেবল, উই আৰ একচেপ্টেড থ্ৰু জিজাছ ক্ৰাইষ্ট। Ephesians chapter 1 verse 4, for he chose us in him before the creation of the world to be holy, blameless in his sight। सृष्टि का पहले से परमेश्वर ने हमें चूज करके रखा है, हमें अलग करके रखा है, और उसमें क्या लिखा है? पवित्र और दाग नहीं रहने वाला, निदाग। अभी आपका जीवन में दाग परमेश्वर नहीं देखा, क्योंकि आप यीशु का लहू के द्वारा आपका हर एक जो दाग को धो दिया गया है, सफा कर दिया गया है, आपको ब्लेमलेस कर दिया गया है, स्टेनलेस कर दिया गया है। इसलिए परमेश्वर आपको पाप को नहीं देखते हैं। थ्रू क्राइस्ट यू आर वैल्यूएबल, मूल्यवान। আগতে মূল্যই নিদিছিলে কোনেও,
পাত্তাই নিদিছিলে, কোনেও আপোনাক গ্ৰহণেই নকৰিছিলে, আপোনাৰ কথাৰ ভেলু নাছিলে। হেই এইটো মানুহটো এনেকুৱা মদাহী, হেই এইটো মানুহটো বেয়া বস্তু খোৱা, হেই এইটো বেবিচাৰী, আপোনাক ঠাট্টা কৰা। কিন্তু থ্ৰু খ্ৰাইষ্ট, যিছ খ্ৰীষ্টৰ যোগেদি আপুনি এজন বহুমূল্য ব্যক্তি হৈ উঠিলে। I want to share a very truth story, trending story. Trending story means अभी ट्रेंड चल रहा है उसका। आगरा, इंडिया का आगरा में बहुत एजेड व्यक्ति, शायद 70-80 साल का होगा, बूढ़ा बूढ़ी दो ऐसे ढाबा खोल के रखा है, बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा में कोई व्यक्ति नहीं जाता, लेकिन उसमें एक फेमस वो लोग पकवान बनाते हैं, खाने का चीज़ बनाते हैं, वो है पनीर मटर पनीर। एक लड़का उसमें गया तो उसने पनीर मटर खाया, उसने वो बहुत अच्छा, मतलब वो यूट्यूबर है, बहुत अच्छा लगा उसको, और उसने यूट्यूब में उसका फ़ोटो को, वीडियो को शूट करके दे दिया। ये बाबा का ढाबा है और इसका सबसे अच्छा पकवान है कि ये इसमें मटर पनीर बहुत अच्छे बनाते हैं, डिलीशियस, लाइक 5 स्टार में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। रिसेंटली काल या परसों जिस व्यक्ति बूढ़ा बूढ़ी, उसका उम्र हो गया, उसका कमाने का कोई पैसा कमाने का कोई उपाय नहीं था, जैसे तैसे वो ढाबा छोटा सा दुकान खोल के रखा है, कोई भी व्यक्ति नहीं जाता, हार्डली दिन में 1 या 2 व्यक्ति जाता है, लेकिन वो मटर पनीर बहुत अच्छा से बनाते हैं। जब उसको फेसबुक में, यूट्यूब में उसको प्रचार किया गया, दिखा दिया गया कि ये व्यक्ति बाबा, ये जो है बाबा का ढाबा, ये बहुत अच्छा ये मटर पनीर बनाते हैं, काल दिखा है, लाइन लगा है आदमी पूरा उसका मटर पनीर खाने के लिए, रात उसको फेमस हो गया। अभी बूढ़ा वो जो जिस बाबा ने, जिसने बूढ़ा आदमी ने दुकान दिया था, वो अभी परेशान हो गया, एक कैसा हो गया, उस व्यक्ति का तलाश में है, जो व्यक्ति वो यूट्यूबर उस दुकान को यूट्यूब में डाल दिया, अभी पूरा दुकान में क्या है, लाइन लगा हुआ है, ट्रेंडिंग। अभी आप यूट्यूब में सर्च करने मिलेगा बाबा का ढाबा। You are valuable through Jesus Christ. Once nobody cares you. कोई भी आपको केयर नहीं किया, कोई भी आपको कुछ, आपको मतलब आपसे बात नहीं करता, कोई भी आपको कुछ आपको देता नहीं है, आपसे परामर्श नहीं लेता है, आपको अवॉइड करता है, नेग्लेक्ट करता है। You are a downcast person in this world, in this society, rejected. बट जब आप यीशु को विश्वास करते हैं, इन क्राइस्ट, जब आप यीशु को विश्वास करते हैं, यू आर एक्सेप्टेड। दुनिया का बारे में छोड़ दो, यू आर एक्सेप्टेड, यू आर वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर का नजर में आप बहुमूल्य है। आपका करोड़ रुपया देने से भी प्रभु आपको कभी नहीं बेचेगा। शैतान आके प्रभु को बोलेगा, प्रभु ये इतना पैसा ले लो, इस व्यक्ति को मुझे दो। प्रभु बोलेगा नहीं, ही इज मोर वैल्यूएबल, ही इज वैल्यूएबल पर्सन टू मी। वो मेरे लिए बहुत सा क्या है, बहुत सा दामी और बहुत वैल्यू है उसका मेरे लिए। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा है, बट यू आर ए चूजन पीपल, ए रॉयल प्रीस्टहुड, ए होली नेशन, गॉड्स स्पेशल पोजीशन, दैट यू मे डिक्लेयर द प्रेजेस ऑफ हिम हु कॉल्ड यू आउट ऑफ डार्कनेस इनटू द वंडरफुल लाइट। यू आर ए चोजन पीपल। आज आप क्रिश्चियन जो है, आप मसीही है, इसको परमेश्वर ने आपको चूज किया है, परमेश्वर ने आपको बीन लिया है समाज में से, दुनिया में से, संसार में से, पाप में से, रिजेक्टेड चीज में से आपको बीन के ले लिया, और अभी आप परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। आप रॉयल प्रीस्टहुड, आप एक राजा का प्रीस्ट है, और आपको अंधकार में से उजाले में लेके आया ताकि परमेश्वर को आप स्तुति दे सके। प्रेज द लॉर्ड। यू आर वैल्यूएबल पर्सन। आप बहुत क्या है, बहुत मूल्यवान व्यक्ति, আপুনি बहुत मूल्यवान व्यक्ति। এতিয়া যেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক চাই, আপোনাক অৰ্ডিনেৰী পেলাই দিয়া, ঘিন কৰা এনেকুৱা নাচাই, খ্ৰীষ্টত আপোনাক বহুমূল্য ব্যক্তি। সেইকাৰণে কৈছে, আপুনি আঁখো কি পুতলি কা জেচা, নিজৰ চকুৰ মণিটোৰ নিচিনা ঈশ্বৰে আপোনাক মৰম কৰে। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰে আপোনাক কেনেকুৱা মৰম কৰে? এতিয়া নিজৰ চকু, আমি নিজৰ চকুটোক, মণিটোক কিমান আমি যতনেৰে ৰাখোঁ, ঠিক তেনেকৈ ঈশ্বৰে নিজৰ চকুৰ মণিৰ দৰে আপোনাক মৰম কৰে। ইন ক্ৰাইষ্ট উই আৰ ইটাৰনেলি লাভড। খ্ৰীষ্টত আমি এতিয়া সদায় দিনৰ কাৰণে প্ৰেমৰ পাত্ৰ হ'লোঁ। খ্ৰীষ্টত, যীশুখ্ৰীষ্টত
আমি এতিয়া সদায় কি আছে প্ৰেমৰ পাত্ৰ জন পল II আৰু মাৰ্টিন লুথাৰ কিং জুনিয়ৰ प्रिंसेस डायना मदर टेरेसा नेल्सन मंडेला ऑल टाइम फेवरेट पर्सन कोई दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है उनको प्यार नहीं करता बोलते प्रिंसेस डायना कभी आदमी लोग प्यार करता है हमेशा प्यार करता है मार्टिन लूथर किंग को प्यार करता है क्योंकि उसने हम लोग को जो प्रोटेस्ट करके हम लोग को निकाल के लेके आया हम लोग को प्रोटेस्टेंट ग्रुप को जॉन पॉल II नेल्सन मंडेला हर एक को प्यार करता है ऑल टाइम फेवरेट पर्सन एंड मोस्ट लविंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड आदमी लोग ऐसा और बहुत व्यक्ति का नाम है हमेशा प्यार करता है आदमी लोग आज आपको परमेश्वर ने हमेशा याद करने के लिए हमेशा प्यार करने के लिए बुलाया है आपको एक दिन प्यार करेगा और दूसरा दिन आपको छोड़ देगा ऐसा बात नहीं है ड्यूटरनॉमी चैप्टर 7 वर्स 6 फॉर यू आर ए होली पीपल Deuteronomy chapter 7 verse 6 में लिखा है You are a holy people who belong to the Lord your God आप एक पवित्र जाति है आप दुनिया का जाति नहीं है आप परमेश्वर का जाति है इसीलिए जब आप प्रभु का पास आता है आपका ऊपर में परमेश्वर का जो चेन है परमेश्वर का जो एक कनेक्शन है आपका ऊपर रहता है तो आप जहां भी जाते हो परमेश्वर का नजर आपका ऊपर बनाए जाते हैं रखा जाता है जैसे आपका कोई वाहन है आप उस वाहन में GPS ट्रैकर लगा के रखते हैं GPS ट्रैकर लगाने से वाहन जहाँ भी जाए आप अपना घर पे बैठ के उस आपका सेलफोन में देख सकते हो कि मेरा वाहन कहाँ जा रहा है आप जहाँ भी आप उस जाएंगे बैठा हुआ है चला है क्या कर रहे हैं आप उसको अपना मोबाइल से ट्रैक कर सकते हो जब आप प्रभु ने आपको चूजन आपको मैंने इसको प्यार किया है I have loved him with an everlasting long ऐसे बोल के हमेशा रहने बोला प्यार से मैं उसको प्यार किया तो यीशु मसीह के द्वारा आप एक प्रिय पात्र अपनी एजन मरমৰ पात्र আপোনাক ঈশ্বৰে মৰম কৰে সেইকাৰণে বাইবেলত কৈছে যে of all the people on this earth the Lord your God has chosen you to be his own special treasure মই বাক্যটো পঢ়ি ইমানে ভাল লাগে যে এই গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ মাজত सरे बाची लले प्रेज द लॉर्ड তুমি গোটেই সম্পদ গোটেই সংসাৰৰ মাজৰ পৰা এই পৃথিৱীৰ মাজৰ পৰা ঈশ্বৰে তোমাক বাছি ললে কি কাৰণে যাতে তুমি ঈশ্বৰৰ এজন কি হয় বিশেষ সম্পত্তি বুলি ক'লে বহুত মানুহৰ বহুত সম্পত্তি থাকে কিছুমান সম্পত্তিত তেওঁৰ চকু থাকে হেতু তেওঁ কেতিয়াও নাপাহৰে হেতু তেওঁ সদায় মনত ৰাখে সেই কাৰণে আজি আপুনি ঈশ্বৰৰ বিশেষ সম্পত্তি ফাইনালি You are forgiven through Jesus. Now you are forgiven from your all kind of sins you have committed in your life. Each and every kind of sins. जिकुनु धरणर पाप कोई भी पाप अगर आप किया है दुनिया में ऐसा घृणनीय पाप आपके द्वारा हुआ है लेकिन जब आप यीशु मसीह का पास आते हैं आपका हर एक गुनाहों को गॉड ने माफ कर देता है धो देता है 1 Peter chapter 2 verse 10 At one time you were not God's people एक समय आप प्रभु का आदमी नहीं था एक समय आप प्रभु का आदमी नहीं था क्योंकि आप लोग क्या था हम लोग पाप में था और पाप का दूसरा जो है मालिक जो है वो शैतान है हम लोग पोजीशन था शैतान का संपत्ति था लेकिन यीशु के द्वारा जो अभी हमको माफ कर दिया गया है हमारा हर एक गुनाह को माफ कर दिया गया है इसीलिए इसमें लिखा है at one time you were not God's people but now you are his people अभी आप परमेश्वर का क्या है आप परमेश्वर का आदमी हैं you are God's people इसीलिए क्रिश्चियनिटी में ब्रदर एंड सिस्टर बोला जाता है जब आप यीशु को विश्वास करते हैं आप एक ही पिता का भाई और बहन हम लोग होते हैं इट इज कॉल्ड ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट जब भी प्रचारक को बोलते हैं हम लोग हे पास्टर हे इवेंजलिस्ट बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का आदमी मैन ऑफ गॉड प्रोफेट ऑफ गॉड हम लोग को यहाँ पास्टर को हे पास्टर बोल के बुलाते हैं उसको तो सार बोलना तो पास्टर सार बोलना तो बहुत दूर का बात है किस लिए सार तो डॉक्टर लोग हैं इंजीनियर लोग हैं दुनिया का जो प्रोफेसर लोग हैं सार उसको सार बोलना है पास्टर को क्यों सार बोलना है
पास्टर को दादा बोलेगा, भाई बोलेगा, ये बोलेगा, नहीं, वो सबसे ऊपर में है, क्योंकि वो हेवनली सर्विस में है। दुनिया का सर्विस में कोई इसका नहीं है। हेवनली सर्विस, आपके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, आपके लिए वो कोई मिनिस्टर से बात नहीं करता, आपके लिए कोई प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं करता। ये तो दुनिया का व्यक्ति है। एक पास्टर, एक जो मिशनरी, एक जो इवांजेलिस्ट जो है, आपके लिए वो परमेश्वर से बात करता है, आपके लिए परमेश्वर से वो निवेदन करता है, इसीलिए हेवनली सर्विस में है। आप उसको रेस्पेक्ट देना सीखो, क्योंकि इसमें लिखा है एक समय आप प्रभु का संतान नहीं था, आज आप प्रभु का संतान है, आपको प्रभु का संतान बनाया गया है। Romans chapter 8 verse 1, so now there is no condemnation for those who belongs to Christ Jesus. अभी उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि जो यीशु का पास आया है उसका हर एक गुनाह को माफ कर दिया गया है, सफा कर दिया गया है। भाई बहन, जितना भी आज आप लोग हैं, आज आपको पाप को यीशु ने, आपका पाप को यीशु ने माफ कर दिया है। Now you are capable, आज आप सामर्थ्य, आप कर सकते हैं। यू आर केपेबल थ्रू जीसस क्राइस्ट। हैंडीकैप्ड नहीं है आप। एक हैंडीकैप व्यक्ति था पहले, कुछ करेगा बोलने से आपको बाधा आता है, कुछ आप आगे बढ़ेगा बोलने से बाधा आता है। लेकिन बाइबल, जब आप यीशु को जाना तो बाइबल कहती है नाउ यू आर केपेबल, आप कर सकने वाला व्यक्ति है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9, इसमें लिखा है कि आप एक कैपेबल व्यक्ति है, आप एक प्रीस्ट है, आप एक प्रभु का एक महान, एक राजकीय प्रीस्ट है। इस वचन को आप हमेशा याद रखिएगा। आज प्रभु आपसे क्या चाहता है? फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 13, For I can do everything through Christ who gives me strength. मैं यीशु के जो द्वारा सब काम कर सकता हूँ, जो मुझे शक्ति देता है। यीशु के द्वारा मैं सब काम कर सकता हूँ। इसलिए आज प्रभु आपको क्या चाहता है? प्रभु आपसे क्या चाहता है? फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 17, आपसे प्रभु क्या चाहता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है। फर्स्ट पीटर 2:17 অসমীয়া বাইবেলত কৈছে, সকলোকে সমাদৰ কৰা, ভাই মাত্ৰকে প্ৰেম কৰা, ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰাখা, ৰজাক সমাদৰ কৰা। Let the light of God shine on you. ঈশ্বৰৰ পোহৰটো তোমাৰ জীৱনত প্ৰকাশ হ'বলৈ দিয়া। ঈশ্বৰে যেনেকৈ সকলোকে প্ৰেম কৰে, ঈশ্বৰে যেনেকৈ সকলোকে ভাল পায়, ঈশ্বৰে যেনেকৈ সকলোকে ক্ষমা কৰে, ঈশ্বৰৰ গুণটো আপোনাৰ গাত প্ৰকাশ হ'বলৈ দিয়ক। Let the light of God shine on you. ঈশ্বৰে আজি এইটো বিচাৰিছে, মই তোমাক গ্ৰহণ কৰিলোঁ, মই তোমাক ক্ষমা দিলোঁ, তোমাক মই সদায় কাৰণে মৰম কৰিলোঁ, মই তোমাক চব কাম কৰিব পৰা কৰিলোঁ। এতিয়া তুমি মোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? এতিয়া যাতে ঈশ্বৰ কেনেকুৱা হয়, আন মানুহ যিবিলাকে আজি ঈশ্বৰক দেখি পোৱা নাই, ঈশ্বৰক চিনি পোৱা নাই, ঈশ্বৰক জানি পোৱা নাই, তেওঁলোকে যেন আমাৰ জীৱনত সত্য ঈশ্বৰক देखिबले पाए। आज दुनिया का हर एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो लोग आपको देखते ही यीशु कैसा है जान चुका है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा जो वाइफ रीना, वो ये बागान का जो फूल काम करने के लिए अच्छा पाता है, तो इसलिए एक कुम्हार का पास गया और उसको बोला मेरे लिए एक छोटा सा ऐसे खुरपी बना दो, मैं काम करने के लिए चाहता हूँ। तो उसने अच्छा से खुरपी बना के दिया। जिस दिन लेने के लिए गया था, रीना भी गया कुम्हार का उसमें, और कुम्हार का उसमें, और मैं भी गया। लोहार मैं भी गया। तो बात करते करते वो लोहार ने पूछ दिया, लोहा का काम करने वाला ब्लैक स्मिथ, उसने पूछा क्या आप क्रिश्चियन हैं? तो रीना बोला हाँ। मैंने बोला हाँ। तो मैंने पूछा आप कैसे, आपको पता चला, आपको कैसे पता चला हम लोग क्रिश्चियन हैं? आपका बात बोली से पता चलता है कि आप लोग क्रिश्चियन हैं। दुनिया में क्रिश्चियनिटी से ऊपर और कोई नहीं है। वो व्यक्ति बता रहा है, एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार बता रहा है, दुनिया में क्रिश्चियनिटी का ऊपर कुछ है नहीं। और इसीलिए क्रिश्चियन आदमी बहुत अच्छा होता है, उसका बात बोली से पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है। इसीलिए मैं अपना बच्चा लोग क्रिश्चियन स्कूल में दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आज आपको
Let the light of God shine on you. आपको देखने से, आपका साथ बात करने से दुनिया का आदमी को ये पता चलना चाहिए ये क्रिश्चियन है, ये इज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट और यीशु को पीछे चलने वाला व्यक्ति है। इसीलिए आदमी भी यीशु कैसा है जानने के लिए उसका मन में भी होगा, ये व्यक्ति अगर इतना अच्छा है, वो जिसको फॉलो कर रहा है वो कितना अच्छा होगा, वो यीशु का पास आएगा। जैसे आपको आज जीवन मिला है, आज ऐसे हेराया हुआ नहीं जाने वाला व्यक्ति को भी जीवन मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में आगे जाएंगे। लेट ऑल स्टैंड टुगेदर एंड वी आर गोइंग फॉर प्रेयर। हम लोग प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रभु हम लोग को आशीष दे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rabba Shaka, Rabba, hallelujah, dhanabad. Hallelujah, Rabba, hallelujah, dhanabad, 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 dhanabad. Prabhu dhanabad, 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 dhanabad. Hundor baikor kane Prabhu dhanabad dio. Hundor আশীৰ্বাদৰ কাৰণে প্ৰভু ধন্যবাদ দিওঁ, সুন্দৰ দয়াৰ কাৰণে প্ৰভু ধন্যবাদ দিওঁ। প্ৰভু তোমাৰ বাক্যৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিওঁ। পিতা তুমি আমাৰ পুৰণা জীৱন, পাপত থকা জীৱন আৰু প্ৰভু অন্ধকাৰত থকা জীৱন, আজি প্ৰভু তোমাক পোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া যিটো জীৱনত আছোঁ, আজি আমাক কম্পেয়াৰ কৰি চাবৰ কাৰণে দিলা। প্ৰভু আজি ঘৃণাৰ পাত্ৰ আৰু প্ৰভু আমি বেয়া অপৰাধী আৰু প্ৰভু মানুহৰ প্ৰভু ঠাট্টা আৰু প্ৰভু আমি মানুহৰ আমি প্ৰভু যীশু পিতা আলোচনাৰ বিষয় আছিলোঁ, কিন্তু হালেলুয়া প্ৰভু আজি তুমি আমাক সকলোবিলাকৰ পৰা উঠাই আমাক এটা স্থান দিলা। প্ৰভু যীশু এটা স্থান তুমি আমাক দান কৰিলা, তাৰ বাবে আমি তোমাক ধন্যবাদ দিওঁ। এই স্থানৰ কাৰণে, এই প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে, এই দয়াৰ কাৰণে প্ৰভু আমি তোমাক ধন্যবাদ দিওঁ। প্ৰভু তোমাৰ পবিত্ৰ নামত মই ধন্যবাদ 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 দিছোঁ। প্ৰভু যীশু এই সময়ত তোমাৰ অনুগ্ৰহ আৰু আশীৰ্বাদ আৰু দয়া মই কামনা কৰিছোঁ। প্ৰভু যীশু আজি এই বাক্য যিমান ভাইবিলাকে শুনিলে, এই বাক্য যিমান ধনীবিলাকে শুনিলে, প্ৰভু এই বাক্যই যেন তেওঁলোকৰ জীৱনত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে যেন প্ৰভু পাপময় সংসাৰৰ পৰা, পাপময় অভিলাষৰ পৰা, পাপৰ পৰা মুক্ত হৈ প্ৰভু সত্য ঈশ্বৰ প্ৰভু তোমাৰ ওচৰলৈ যেন চাপে, মই এনে তোমাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছোঁ। তোমাৰ সন্তানবিলাকে তোমাক জানিবৰ কাৰণে, তোমাৰ সন্তানবিলাকে তোমাক প্ৰভু চিনি পাবৰ কাৰণে এই বাক্যই তেওঁলোকৰ জীৱনত কাম কৰোঁতা হওক। প্ৰভু মই এনে তোমাৰ ওচৰত নিবেদন কৰোঁ। হালেলুয়া ৰাবা শাকা বাৰা ও ৰাবা ৰাবা প্ৰভু ধন্যবাদ, মহিমা প্ৰশংসা ধন্যবাদ হওক পবিত্ৰ আত্মা। এই সময়ত তুমি কাম কৰা পিতা, যিমান ভাই ভনীসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, যিমান ভাই ভনীসকল প্ৰভু আজি হালেলুয়া পিতা এই প্ৰভু আমাক ফেচবুক লাইভ আৰু ইউটিউবৰ যোগেদি আমাৰ লগত জড়িত হ'ল, প্ৰত্যেকজনৰ ওপৰত প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া। প্ৰত্যেকৰ জীৱনত প্ৰভু তোমাৰ অনুগ্ৰহ আহিবৰ কাৰণে দিয়া, প্ৰত্যেকৰ জীৱনত তোমাৰ পবিত্ৰ আত্মা আহিবৰ কাৰণে দিয়া আৰু তেওঁলোকক তুমি অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আহিবলৈ দিয়া, অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আহিবৰ কাৰণে দিয়া, অন্ধকাৰৰ পৰা পোহৰলৈ আহিবৰ কাৰণে দিয়া। আজি তেওঁলোকৰ জীৱন পৰিৱৰ্তন কৰা প্ৰভু যীশু, তোমাৰ শান্তি তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ আহিবৰ কাৰণে দিয়া, তোমাৰ পবিত্ৰ অনুগ্ৰহ তেওঁলোকৰ জীৱনত আহিবৰ কাৰণে দিয়া আৰু তুমি তেওঁলোকক মাতি লোৱা প্ৰভু যীশু, ৰাজকীয় পুৰোহিত হ'বৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ লোক হ'বৰ কাৰণে, এক বিশেষ সম্পত্তি হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক মাতি লোৱা প্ৰভু যীশু। হালেলুয়া, য়েছ লৰ্ড, য়েছ লৰ্ড। প্ৰভু ধন্যবাদ 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 ধন্যবাদ। প্ৰভু মই তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ কাৰণে তোমাৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছোঁ। এই সময়ত তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা, তেওঁলোকক তুমি অনুগ্ৰহ কৰা, পবিত্ৰ আত্মা তেওঁলোকৰ জীৱনত তুমি কাম কৰা, পবিত্ৰ আত্মা তেওঁলোকৰ জীৱনত তোমাৰ আশীৰ্বাদ আহিবৰ কাৰণে দিয়া, তেওঁলোকৰ জীৱনত তোমাৰ দয়া আহিবৰ কাৰণে দিয়া, তেওঁলোকৰ প্ৰভু যীশু পিতা শান্তিত কাম কৰা। যিবিলাক আজি পাপত ডুবি আছে, পাপৰ সাগৰত প্ৰভু ডুবি আছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰভু আজি পাপময় জীৱনত আছে, তুমি তেওঁলোকক প্ৰভু মন ঘূৰাবলৈ দিয়া, তেওঁলোকক মন ঘূৰাবলৈ দিয়া, তেওঁলোকক মন ঘূৰাবলৈ দিয়া, তেওঁলোকক মন ঘূৰাবলৈ দিয়া, তেওঁলোকক তোমাৰ ওচৰলৈ চাপিবলৈ দিয়া, তেওঁলোকক তোমাক জানিবৰ কাৰণে দিয়া, সহায় কৰি দিয়া, অনুগ্ৰহ কৰি দিয়া, আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া। এই বাক্যই প্ৰভু কেৱল তেওঁলোকে শুনোতা নহয়, এই বাক্যই তেওঁলোকৰ জীৱন যেন পৰিৱৰ্তন কৰে, তেওঁলোকে পালন কৰোঁতা হ'ব পাৰে, তুমি তেনে অনুগ্ৰহ কৰিবা। মোৰ নিচিনা অধম পাপীক তুমি ব্যৱহাৰ
কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিওঁ প্ৰভু যীশু এই বাক্য প্ৰভু কেৱল মই কওঁতা নহয় এইটো যেন প্ৰভু মোৰ জীৱনতো কাম কৰে তুমি তেনে অনুগ্ৰহ কৰিবা এই সময়ত যিসকল ৰোগত আছে দুখত আছে প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ ওপৰত তোমাৰ অনুগ্ৰহ আহিবলৈ দিয়া ৰোগত থাকোঁতা সকলক প্ৰভু তুমি সুস্থতা প্ৰদান কৰা প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে যিসকল ৰোগত আছে সেই সকলোৰ জীৱনৰ পৰা সকলো ৰোগবিলাকক ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছোঁ প্ৰভু যীশুৰ নামেৰে যিসকল ৰোগত আছে সেই ৰোগত থাকোঁতা সকলৰ জীৱনৰ পৰা সকলো ৰোগবিলাকক ওলাই যাবলৈ মই আজ্ঞা দিছোঁ প্ৰভু তুমি আহা এই সময়ত এই ভিডিঅ' প্ৰভু চাই থাকোঁতা যিমানসকল আছে তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰভু এই প্ৰাৰ্থনাত মন দিব এই প্ৰাৰ্থনাৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা তেওঁলোকে মুক্তি পাব প্ৰভু তুমি তেনে অনুগ্ৰহ কৰা তেওঁলোকে যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা বিচাৰি প্ৰভু কান্দিব এই প্ৰাৰ্থনাই যেন তেওঁলোকৰ জীৱনত পবিত্ৰ আত্মা অহাত সহায় কৰে অ' ৰাবাশাকা বাৰাবাৰাবাৰাবাশাকা অ' ৰাবাৰাবা পবিত্ৰ আত্মা তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভু তুমি কাম কৰিবা তেওঁলোকৰ ঘৰত যদি অশান্তি হয় প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ দান কৰিবা সকলো গৌৰৱ মহিমা তোমাৰ নামতে হওক সুন্দৰ সময় সুন্দৰ ফেলোশ্বিপ তুমি আমাক দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দি এই প্ৰাৰ্থনা আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তা দয়ালু প্ৰভু যীশুৰ নামত জনালোঁ আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড থেংক ইউ